Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो कलेक्शन के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कलेक्शन का नाम वैसे इंग्लिश समझ है बट पूरा इंडियन समझ के लिए बना हुआ है, कुछ भी इंग्लिश उसमें है नहीं, बट थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ कोर्स बोरो किए हुए हैं कलर्स वगैरह के हिसाब से या थोड़ा सा प्रिंट्स एंड मोटिव्स, बट अदरवाइज पूरा हमारे इंडियन उसके बना हुआ है। बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट एवरीवन इन द वर्ल्ड टू वेयर इट, एंड ये बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक से बना हुआ है जो कि हम अपने इंडियन समर्स के लिए सही रहता है, एंड उसमें ऑफ कोर्स मिनिमम एम्बेलिशमेंट वगैरह सब कुछ है, बट उसका जो पूरा स्टाइलिंग ग्लोबल है बट सोल पूरा इंडियन है। अनुज जी, कैसा लगा आपको कलेक्शन? बहुत प्यारा लगा। आई लव द कलर्स, एंड वैसे भी मुझे श्रुति के सारे कलेक्शंस के जो कलर चॉइसेस होते हैं बहुत पसंद हैं। शी जनरली प्लेज अ लॉट विथ pastels and colors which are easy on the eyes and very soothing and very feminine also by nature. And the best part is that her Indo-Western appeal really fits in all the time. मैंने last time इनके winter collection का भी देखा था, so इसमें बहुत ही एक edge था, लेकिन at the same point in time it was very feminine, very elegant. Like the one that I'm wearing right now, it's very casual, very easy to wear, comfortable, but at the same time extremely elegant and poised, and I feel like a princess. So yeah, so her collection is generally a great combination of sorts. ओके, इसी के साथ में अगर पर्सनली अगर आपकी अगर बात करिए तो आप किस तरीके के फैशन को फॉलो करती हैं? I don't think I follow any kind, but whatever suits the occasion or whatever suits my mood on that particular day. जो भी मुझे मेरी body type के लिए लगता है कि suit करता है, the one that I am able to carry off nicely. I think fashion should be a very personal statement, and you cannot really follow it. You should feel comfortable in it, and you should feel beautiful in it. That's what it's meant for. Okay, what was the inspiration behind your collection? The inspiration always is that the average Indian woman who wears my clothes, उन्हीं के लिए मैं कपड़े बनाती हूँ, मैं अकाउंट करती हूँ उनके अपने इंडियन फिगर फ्लॉस, पर ऐसे ब्यूटीफुल लोग पहन लेते तो और फ़ायदा हो जाता है, पर अदरवाइज यही हमारा इंस्पिरेशन है और मतलब यही मेरा थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, ग्लोबली मैं चाहती हूँ कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि इंडियन कपड़ों को इंडियन वे में ही ग्लोबली प्रेजेंट किया जाए। Which is beautiful thought. And ये बोल रही हैं कि जो beautiful लोग पहन लें, but hers is one kind of a collection जो लोग पहन के beautiful लगते हैं शायद। लेकिन इसी के साथ कोई परफेक्ट ड्रेस में आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? क्या क्या मतलब लेने से पहले क्या सोचती हैं? I think एक तो actually I'm not a great shopper because मैं बहुत instinctively सोचती हूँ, मैं अपनी wardrobe का सोच के और necessity का सोच के नहीं करती हूँ. That's one problem. But anything that appeals to me, first of all, जिसमें मुझे interesting लगे, थोड़ा different लगे, at the same point in time wearable होना चाहिए. That's as Shruti said, उनके कपड़े काफ़ी wearable हैं, काफ़ी functional clothes हैं. No point in wearing something and buying something that you won't really end up wearing at many occasions or which become very categorical. There has to be flexibility in the clothes कि उनको आप 3 different occasions में पहन सकें. And yeah, they should make me feel beautiful. I think that's the only thing. And समर की अगर बात करिए तो समर में किस तरीके की Light colors, especially जैसे भी मैंने पहना हुआ है. I think they should be easy on other people's eyes also. Easy is Yeah, like when you wear something which is very dark and heavy, I think
आपसे ज़्यादा और लोगों को भी गर्मी लगनी चालू हो जाती है. So exactly, so you would want to wear something which brings about a brightness in the environment. You know, people should feel nice and bright on looking at you, and you yourself should feel very easy at the same point in time. And something which is comfortable, which I feel कि अगर मैं fully clothed भी हूँ, so I should not feel warm or hot and perspiring, which is perfect because it's like, if you can see, it's a long dress but it's very easy and breezy to wear. ओके, तो इसी के साथ में आपकी वेब सीरीज को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जी. बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपके Yes. किरदार भी बहुत पसंद कर रहे हैं. Thank क्या you. कहना चाहेंगे उसके बारे में? Very excited, very thankful. There's immense amount of love pouring in, and I can only thank our directors Tigmanshu sir and Vishal Furia for doing such a stellar job. I got to pair with Pankaj sir, which was a great experience. And मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सबको हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. एक जो जुगलबंदी है वो बहुत पसंद आ रही है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं. And just so thankful to the audiences, yeah, for accepting it so much. I get so many messages every day. It's amazing how they take time out to appreciate work, and that's beautiful. ओके, जब मैं आपसे मिला था तब मैंने इस किरदार के बारे में एडवोकेट किरदार के बारे में आपसे बात करी थी. जी. तो आपने बताया था काफ़ी चैलेंजिंग किरदार है, मतलब बहुत सारा डिफिकल्ट था. तो अब लगता है कि मतलब जब जिस तरीके का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाँ. कि अब मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है. हाँ, एक्चुअली क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से कल मुझे कोई बोल रहा था कि वी वांट टू निखत इन आवर लाइव्स एज अ लॉयर, एंड काफ़ी लॉयर्स ने मुझे मैसेज करके बोला दैट आई हैव डन अ गुड जॉब, विच वाज वेरी वैलिडेटिंग. एंड या रंग तो लाई है, बट उसके साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि नाउ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ जो करती हूँ शुडंट बी द सेम थिंग, इट शुड बी डिफरेंट, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक देम प्राउड अगेन. ओके, इसी के साथ में नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है, उसके बारे में बताइए. अभी सेक्रेड गेम्स आने वाली है पार्ट 2, so I'm playing Saif's ex-wife in that. Then there is a series called Asura, which is on Woot, जिसमें अरशद वारसी हैं. फाइनल कॉल तभी आई थी अर्जुन के साथ. एंड एक मूवी है जो आने वाली है समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती. अगर आपसे अगर बात करिए तो सबसे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है हमारे क्रिएटिव में? पद्मावत, मैं भी राजस्थान से हूँ तो मुझे तो रानी साहब वाला कैरेक्टर पसंद है. होना भी चाहिए, संजय सर की किरदार है, नथिंग कैन बीट दैट. ओके, तो इसी के साथ में वोटिंग्स भी होने वाली है, तो मतलब क्या कहना चाहिए फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनको, क्या मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे? जस्ट गो विथ योर गट इंस्टिंक्ट्स, डोंट गेट इम्प्रेशनेबल. जो आपको सही लगता है वो करें. काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग चल रही है, बहुत सारा हर तरफ से 4 लोग 4 बातें कर रहे हैं. आई थिंक जिन्होंने भी पूरे 4 साल 5 साल जिस तरह की तरक्की देखी है, एवेल्यूएट किया है, उस एक्सपीरियंस से जाके वोट करें. जो अभी पूरा दोनों पार्टीज़ या 2 बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो पूरी तरह से जोरों शोरों में एडवर्टाइज़ कर रही हैं, खाली उससे ना करें, एंड वोट ज़रूर करें. सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है.